Hello, I am Dr. Satya Yadav. I am a pediatric cancer specialist at Medanta Hospital, Gurgaon. So, today, welcome to Fit Tuck. That's the platform we are talking here, and we are going to talk about myths of childhood cancer. So, the first myth which commonly people think is that childhood cancer is not curable, that if a child gets cancer, he cannot be cured. And that's entirely wrong. The fact is that most children, more than 80% of children, can be cured permanently of cancer. And the survival has improved in last 5 decades. Like 50 years back, the survival was just about 20 to 30%, but now it is reaching 80 to 90% for various cancers. And that's very, very positive news for the parents. So childhood cancer is highly, highly curable. The second myth which people have is that the children cannot tolerate chemotherapy. So again, this is wrong because children are much healthier than the adult people and they can tolerate chemo far more easily than adults because they have a younger heart, a healthy liver, a healthy kidney. These are the organs, kidney and liver, which handle the drugs we give. The chemotherapy are medicines which are given and they come out in the urine. So a good kidney function is required, and they come out in the bile. So liver is required to handle these drugs. The third myth which we commonly hear in the general public is that alternative treatments, Ayurvedic, homeopathic, they can cure cancer in children and they don't have any side effects. So this is again wrong information because Ayurvedic, homeopathic, Unani systems, they cannot cure childhood cancer. So we should not go for these medicines. If they don't have any side effects, they don't have any effect also. In fact, if you are taking chemotherapy and side by side you take some alternative treatment like Ayurvedic medicines, they may interfere in the efficacy of the chemotherapy. वो chemotherapy को ठीक से काम नहीं करने देंगी और आपका बच्चे का कैंसर ठीक नहीं हो पाएगा. तो कोई भी और दवाई साथ में नहीं देनी चाहिए. That's very, very important. And chemotherapy itself and other treatments like radiation, surgery, together they ensure that most children are cured of cancer. इसके बाद जो चौथा मिथ कॉमनली हम लोग सुनने में आता है या पीपल थिंक कैंसर तो ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर कहते हैं, बट ये बच्चे कभी नॉर्मल नहीं हो सकते. इसको कैंसर हो गया एक बार तो ये कभी नॉर्मल नहीं होगा. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. Children who undergo chemotherapy or treatment for cancer, most of them have productive life. They finish school, college, they pick up job, they work like normal people and live a long life. So it's wrong to say that they are not normal or they cannot live a normal life. However, whenever you have had treatment, they need to be monitored for long-term side effects of treatments, and regular checkups may be required once in 2 years or 3 years with their physician. आखिरी जो फिफ्थ मिथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि कैंसर बच्चों में जो होता है ये एक मुश्किल बीमारी है और इसमें ज़्यादातर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो अगेन द newer treatments or better treatments are there which have less and less side effects, and in fact now immunotherapy and targeted therapies are coming. There are certain medicines are coming which have very few side effects and can target the cancer directly, and this is the future of childhood cancer, that we will have far better drugs with less side effects and very, very focused on a particular cancer and treating it. So the future is bright and childhood cancer is highly curable. That's the key message I have to give to everyone. Commonly जो problems हैं बच्चों के कैंसर के बारे में लोगों को जो इतना ज्ञान नहीं है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस कि बच्चे उनको कब कैंसर हो सकता है ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, या लोग जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. तो उसमें जैसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर कॉमनली होता है जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी जब भी होती है तो बच्चा थकने लगता है या सफ़ेद दिखने लगता है या पीला दिखने लगता है. तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए. हालांकि ब्लड कम होने के
हज़ारों कारण हो सकते हैं, पर उनमें से एक कारण कैंसर भी हो सकता है। अगर बच्चे को कहीं से भी ब्लड आ रहा है, नाक से, मुंह से, यूरिन में, तो भी उसके टेस्ट होने चाहिए, कहीं उसको ब्लड कैंसर तो नहीं है। किसी बच्चे को बुखार अगर ठीक नहीं हो रहा, कई हफ्तों तक बुखार चल रहा है और दवाइयों के बावजूद वो सही नहीं हो रहा, तो उसमें कैंसर के लिए टेस्ट करना चाहिए कि उसको ब्लड कैंसर वगैरह तो नहीं है। कहीं भी गांठ महसूस होती है पेट में, गर्दन में, या किसी भी जगह पे कोई लंप या बम्प पेरेंट्स को फील होता है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर चेक कर ले कि क्या ये कैंसर तो नहीं है, जैसे लिम्फोमा वगैरह हो सकते हैं। और कहीं किसी हड्डी में अगर दर्द हो रहा है काफ़ी दिनों से, या किसी जोड़ में सोजिश आ रही है, तो बोन ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर एक खास किस्म का ट्यूमर होता है बच्चों में, जिसका सिम्टम कॉमनली जो बच्चों में होता है वो है कि वो सुबह सुबह उठते ही दूध नहीं पीते हैं। अगर कोई बच्चा जो रेगुलर दूध पीता है, सुबह उठ के अगर वो दूध पीना बंद कर दे और उसे दूध पीना अच्छा नहीं लगता है और उसे उल्टी जैसा लगता है, और कई बार वो उल्टी कर भी देता है सुबह सुबह उठते ही, तो मतलब उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। उसका एक चेकअप होना चाहिए, और कई बार सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चल सकता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होने से ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपको पूरे समय उल्टी के जैसा लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिनके बारे में अगर आपको पता हो तो आप जल्दी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है और बेटर आउटकम्स हो सकते हैं। दूसरा, शहरों और गाँव की प्रॉब्लम है कि रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स ज़्यादा नहीं अवेलेबल हैं, और इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई, स्पेशल टेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उनको शहर आना पड़ता है ये सब चीज़ें कराने के लिए। तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि लोकल जो भी उनको डॉक्टर देख रहे हैं उनको खुद पता हो कि क्या क्या सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं और उन्हें कब जल्दी रेफ़र करना है। तो अर्ली रेफरल कैन सेव लाइव्स, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि बच्चे का जब भी ट्यूमर पता चलता है या कैंसर पता चलता है, तो बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट शुरू करा के ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, अबेंडनमेंट कर देते हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बहुत महंगा है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बच्चा ठीक नहीं होगा, आयुर्वेदा बेटर है। तो ये सब भी बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत रॉन्ग मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, जिसमें कि आपको ये जानना है कि रेगुलर ट्रीटमेंट से ही बच्चा ठीक होगा और पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसको पूरा करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा ठीक होगा।